آپ اگلے ہفتے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ کو بہت ساری مثبت چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور نومبر کے پہلے ہفتے میں عمران خان جو ہے وہ باہر ہوں گے اور بنی گالا میں جو ہے وہ عظیم شان قسم کی ایک پریس کانفرنس کریں گے، اور پھر وہ مینار پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی کریں گے۔ بین الاقوامی پریشر بہت زیادہ ہو گیا ہے، جیسے آپ نے امریکہ میں دیکھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایوان نمائندگان کے 62 ممبرز نے ڈیمانڈ کی اپنے پریزیڈنٹ سے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں جو معاملات چل رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا تدارک کرائیں۔ کہ یہ جو جعلی حکومت ہے، یہ جو عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا تھا، بہت جلد ان سے جان آپ کی چھوٹ جائے گی۔ سپریم کورٹ بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے، یقیناً اس حکومت کے فارغ ہونے کا وہاں سے فیصلہ جو ہے وہ آئے گا۔ فیصل آباد میں تو سر یہ حالات ہے، میں پہلے بھی اپنے ناظرین کو ہم بتا چکے ہیں کہ وہاں پہ تو فیکٹریوں کا قبرستان بن رہا ہے۔ 24 سے 48 گھنٹے غائب رہے ہیں اور کے پی کے اسمبلی سے برآمد ہوئے ہیں، تو تب وہ ڈیل ہوئی ہے؟ وہ تو ڈیل نہیں ہوئی نا، پھر وہ تو کامیاب ان کا جو پاکستان تحریک انصاف کا کامیاب احتجاج جو تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لوگ نیوز اور میں آپ کا میزبان بلاول حسین۔ جی ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں میاں امانت علی، جو سابق سیاسی مشیر ہیں پنجاب کے، انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہے، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے فخر الرحمان جو سینئر اینکر پرسن ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں کے ٹائم کا۔ جی ناظرین، آج کا ہم پروگرام فخر الرحمان صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ فخر صاحب، سینیٹر فیصل واڈا صاحب جو کل انہوں نے ایک پیشن گوئی کی ہے، آج وہ سچ ثابت ہو گئی ہے، ان کے پاس کون سی ایسی گدر سنگھی تھی کہ جو بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا؟ وہ آج ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ٹاک شو میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھا آپ، میں نے کل کہا تھا نا ایسا ہوگا، ویسا ہی ہوا ہے، اب آگے یہ ہوگا۔ تو سر آپ کے پاس ایسی معلومات کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں، یہ جو سینیٹر فیصل واڈا ہے نا، ٹھیک ہے، جو جس قسم کی حرکات اور سکنات انہوں نے یہ عالمی ترامیم کے پاس ہونے پہ کی تھی، تو ان کو شرم سے کہیں جا کے نہ ڈوب مرنا چاہیے۔ اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا بشرا بی بی رہا ہو جائے گی اور ہو جائے گی، اور یہ باتیں، ٹھیک ہے، یہ سب کی سب جو ہے نا اس وقت وہ جس کو کہتے ہیں کرسیانی بجلی کھپا نوچے، اس وقت دنیا جہان کے مقدمات جو تھے وہ بنا دیے گئے، اور جس طرح سے بشرا بی بی کو ایک پردہ دار خاتون کو بے بنیاد مقدمات میں، جھوٹے مقدمات میں ان کو ڈالا گیا، اور جس طرح سے ایک خاتون ہونے کی ان کی تصدیق کی گئی، جس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی، گر سکتے تھے یہ گر گئے، اور بالآخر ان کی ضمانت تو ہونی تھی کیونکہ مقدمات میں کوئی جان نہیں تھی۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے، لیکن سر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل کونسل آف جوریس جو ہے ان کی طرف سے جو رد عمل آیا کہ پاکستان میں عدلیہ کی آزادی کے اوپر یہ حملہ ہے، اسی طرح یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کی طرف سے ساری طرح امریکی کنڈمنیشن آ گئی۔ پھر امریکہ کے 60 سے زائد جو کانگریس مین تھے، اراکین تھے، ان کی جانب سے مطالبات سامنے آئے ہیں۔ تو یہ عالمی سطح کے اوپر جو تماشا انہوں نے لگایا تو اس کی جب مذمت کی گئی ہے، تو اب ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا۔ یہ تو ایسے دعوے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آج فیصل واڈا صاحب نے بیان دے دیا تو جی آج وہ سچ ثابت ہو گیا، کیونکہ اب کوئی جواز بچا ہی نہیں ہے کہ کیا کرتے۔ ہر قسم کے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ پتہ نہیں 200 کے سے بھی شاید زائد مقدمات کر لیے، لیکن وہ سزا جو ہے کسی کی چیز میں کروا نہیں سکتے تھے کیونکہ جھوٹے مقدمات تھے۔ یہ تو سارا انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ پاکستان میں بدترین قسم کی جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے، اور اب جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہاں پر بھی ایسے باشعور ججز موجود ہیں۔ اس طرح سے آج انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کو یا ہائی کورٹ پہ لایا جائے، ان کی ملاقات ان کے خلاف کرائی جائے۔ تو اب یہ ساری بین الاقوامی سطح پر جو مذمت آ رہی ہے، اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی، اس کے بعد نہ تو حکومت کے پاس کوئی جواز رہا ہے کہ وہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے کسی کو کوئی جواب دے سکے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جواز باقی بچا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو آئینی ترامیم انہوں نے کی ہیں وہ تو اب سامنے آ رہی ہیں، ابھی پتہ نہیں وہ اس میں اور کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، جب وہ سامنے آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر کے بیٹھ چکے ہیں۔ آج ہی آپ نے دیکھ لیا کہ
जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कमेटी के हवाले से और जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ था उसके ऊपर जो उन्होंने खत लिखा है वो भी सामने आ गया है। तो अब इनके पैर उखड़ने शुरू हो गए हैं और इनके पास कोई जवाब बचा नहीं है। और आप देखें कि जब हमने आपसे पहले बात की थी आपके प्रोग्राम में, ये जब लॉन्ग एहतजाज जो था वो आईनी तरामीम के खिलाफ होने जा रहा था टी चौक में, अली अमीन गड्ढापुर वहां से आए थे, तो उस वक्त भी यही बातें हुई थी कि आईनी तरामीम को आगे लेके जाया जाएगा, मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होगा। आज JUI के तर्जुमान ने इस हवाले से खुलकर बता दिया कि जो बातें तय हुई थी उसमें ये भी तय हुआ था कि मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन होगा, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी जो थी अपने वादों से पीछे हट गई। अब ये धोखा उन्होंने किसको दिया है, ये भी सारी चीजें जो थी वो सामने आएंगी। सर माजरत के साथ बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, सर बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ही नोटिफिकेशन होना था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। आपने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा वो मैंने आपको ये कहा है ना कि बिलावल का इंटरव्यू जो था वो BBC को उन्होंने दिया है, और जो मुनाफकत, जो हिपोक्रेसी वो दिखा सकते हैं, हर तरह की वो हिपोक्रेसी दिखा रहे हैं। असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कोई बात करते हैं, और बिलावल को तो आज तक अपनी जात के हवाले से नहीं पता चल सका। पहले वो अपनी जात को तो तलाश करें कि वो है क्या, तो उसके बाद कोई दूसरा बंदा दूसरी बात की तवक्को करे। वो तो चैंपियन ऑफ जमहूरियत बनते थे, हर दफा में जो है वो भुट्टो को जिंदा करते हैं, कभी बेनजीर भुट्टो को जिंदा करते हैं, और वो जमहूरियत के लोगों को दर्द देते हैं। ये जमहूरियत के दर्द दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ मिलकर जो है ये आईनी तरामीम का पैकेज जो था, यही बिलावल है ना जिसके बारे में डायरेक्टर कामरान मुर्तजा ने कहा था कि वो कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 8 में जो तरमीम करनी है फौजी दाखिलों के हवाले से देखें कि वो तो करनी पड़ेगी जहाँ से ऑर्डर आया है। यही बिलावल के बयान थे। तो उसके बाद फिर जनाब ये टीवी स्क्रीन से नजर नहीं आ रहे थे आपको, इनकी तमाम हर किस्म की शर्मो या ये जो थी वो खत्म हो चुकी है। जिस नहज पे पाकिस्तान को उन्होंने पहुंचा दिया, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला आवर हुए हैं, अदालती निजाम पर हमला आवर हुए हैं, इसकी तो फिर मिसाल ही नहीं मिलती। और ये तो जमहूरियत के कातिल साबित हुए। फखर साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फखरुर रहमान साहब, आप ये फरमाएं कि दो खबरें मुतजाद चल रही हैं। एक ये है कि यानी जैसे अभी बिलावल साहब भी आपको पॉइंट आउट कर रहे थे कुछ जो गमाशते हैं इन अदारों के और ये जो बरसे इक़्तिदार ग्रोह है उसके, कि जी वो बुशरा बीबी जो है वो डील करके आई हैं, वो पार्टी पर कब्ज़ा कर लेंगी और वो ये कर दें। भाई इमरान खान पार्टी का लीडर है, कौम उसके पीछे है, जिसको वो कह दे कि ये मेरे से फारिग है वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये फैली हुई है बात कि इमरान खान को किसी वक्त भी रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि किसी मुकदमे में कोई जान नहीं है, और ये दिनों की बात है। और तीसरी ये कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया है कि बैन अवी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसे आपने अमेरिका में देखा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के ऐवान नुमाइंदगान के 62 मेंबर्स ने डिमांड की अपने प्रेसिडेंट से कि वो पाकिस्तान के मामलात में जो मामला चल रहे हैं और इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनका तदारक कराएँ। और पाकिस्तान के अंदर भी लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि अदलिया को एक सरकारी महकमे में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि आज़ादी जो थी अदलिया की उसको तो उसका जनाजा निकल चुका है। और ये नहीं इनको समझ लग रही कि सैयद मंसूर अली शाह को कोई पसंद करे या ना करे। आज इस वक्त तक वो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज हैं और वो चीफ जस्टिस बनने की आइन के तहत उनका राइट है। अगर यानी अगर आप जो धौंस धांधली से काम करेंगे, अगरचे याह्या अफरीदी जो है उनकी शोहरत बहुत अच्छी है लेकिन वो तरीक़ाकार गलत है। तो आप मुझे ये बताएं, आप कौन सी खबर है जिसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अगले किसी लम्हे भी वो खबर आएगी और मुल्क एक दूसरी टर्न पर अगले मोड़ से किसी सही समत में चल पड़ेगी? देखिए चौधरी साहब, ये जो 26वीं
की आईनी तरमीम जो है ना, ठीक है, ये जो लोग ये दावे करते हैं ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो आप जरा आइन का प्रियम्बल निकाल लें, दिबाचा निकाल लें और उसके अंदर कि सबसे पहले कुरान है, फिर सुन्ना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर उसके बाद ये पार्लियामेंट है, अदलिया है और एग्जीक्यूटिव है। तो ये अपने आप को क्या, ये पार्लियामेंट जो है वो कुरान और सुन्ना से सुप्रीम हो गई। ये 26वीं तरमीम 26 अक्टूबर के बाद से जो दिन शुरू होंगे, उसके बाद इसका तिया पांचा हो जाएगा और ये सारा मामला रिवर्स होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इज्जत के साथ उनको चीफ जस्टिस बनाना पड़ेगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह की बात नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ अदलिया की आजादी की, इंडिपेंडेंस की, जिसकी प्रोटेक्शन जो है वो ना सिर्फ आइन के अंदर आर्टिकल 2A में दी गई है, बल्कि जजेस अपना जो हल्फ उठाते हैं उसमें भी उन्होंने ये ऐड किया हुआ कि वो आइन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो आइन को जब प्रोटेक्ट करने की बात, इमरान खान कब तक आप देख रहे हैं सियासी लोग में आपके साथ चैनल पर डिस्कशन में शामिल हो रहे हैं? अगले हफ्ते इमरान खान की रिहाई के हवाले से आपको बहुत सारी मुस्बत चीजें जो है वो होती हुई नजर आएंगी और नवंबर के पहले हफ्ते में इमरान खान जो है वो बाहर होंगे और बनी गाला में जो है वो अजीम शान किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर वो मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा भी करेंगे। तेरी आवाज मक्के मदीने। फखरुर रहमान साहब, हमें ज्वाइन किया लाहौर से मियां अमानत अली, साबिक सियासी मशीर वजीर आला पंजाब और एक बड़े कारोबारी, यानी डेवलपमेंट ऑफ लैंड और हाउसिंग और यानी कोऑपरेटिव जो है सोसाइटियों के ऊपर, और जितना लोगों की दाद रसी के लिए इन्होंने जान हथेली पर रख के काम किया है और किसी चीज़ से जान की परवाह नहीं की, माल की परवाह नहीं की और लोगों के यानी साजिशों का भी मुकाबला किया है, उनके घनौने अज़ाइम को भी नाकाम बनाया है, क्योंकि यहाँ तो मुल्क में लूट मार का बाजार गर्म है, लेकिन ये डटे रहे हैं और अपने काम पर खड़े हैं। इनको हम पूछते हैं कि आया जो हुक्मरान नाजायज़ वोट से, डाके से, चोरी से बैठ तो गए हैं, वो कोई खैर अच्छे है नहीं, अवाम के दरमियान आप रहते हैं, कोई अवाम के हालात में बेहतरी, कोई मरियम नवाज ने, कोई दूध और शहद की नहरें बहाई हों, कोई शहबाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, कि कौम किधर जाए, किसी मान उमासी आके। जी साहब शुक्रिया। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि जो PTI के दौर में जो हम काम कर रहे थे इस सेक्टर में, जो चोई साहब ने फरमाया है, उसमें लोगों की इतनी दादरस्ती की थी कि कम से कम कोई हमने 15,000 लोगों को मुख्तलिफ शोबों में ब्रेक्सिट करके लोगों को प्लाट दिलवाए। वही ब्रेक्सिट को इस जो निगरान सेटअप में और इस गवर्नमेंट में ये हुआ है कि वही प्लाटों के साथ दोबारा फ्रॉड हो रहा है। और जो सेक्रेटरी और कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट में जो बदमाश माफिया जो इन्होंने मसलत कर दिया, वो आज लोगों को दोबारा इंक्वायरियाँ करके उन लोगों से वो चीज़ें छीन के वो दोबारा अपनी जेबों में वो डाल रहे हैं। चौधरी साहब, इसमें मैं आपको एक बल्कि दो वाक़े बताना चाहूँगा कि एक इंक्वायरी जारी थी ग्रेटर लाहौर की और एक इंक्वायरी जारी थी PND की, और सुई गैस 3 सोसाइटियों की इंक्वायरी जा रही थी। तो उसमें हमने तकरीबन कोई 15 से 16,000 लोगों को तकरीबन 2 अरब रुपए की रिकवरी करवाई। जब निगरान सेटअप में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मसरत जबी साहबा और एक कमिश्नर मुल्तान थे, अब वो रजिस्ट्रार पंजाब लगाए गए निगरान सेटअप में, जो अभी तक पौने 2 साल से बैठे हुए हैं। उन्होंने इस डिपार्टमेंट में, इस गवर्नमेंट की निगरानी में, मरियम नवाज की निगरानी में उन्होंने तबाही कर दी है। इन्होंने क्या किया है कि एक कमेटी बना दी है चीफ सेक्रेटरी की निगरानी में, जो पूरे पंजाब की सोसाइटियों की निगरानी कर रहे हैं और ये वहाँ पे ब्लैकमेल करके लोगों से रिश्वतें वसूल कर रहे हैं, जिनके प्रूफ मेरे पास अब मौजूद हैं। आपके पास है? जी मेरे पास मौजूद है और मैं बिल्कुल वो फैक्ट्स के साथ आपको बता सकता हूँ। तो वो सुनने वाला कोई भी नहीं है। आप सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो पब्लिक का तो इतना बुरा हाल है कि क्लाइंट जो क्लाइंट है वो गलियों में धक्के खा रहे हैं। नहीं तो माफ करना मियां अमानत अली साहब, जी सर, यहाँ एक और भी अहदेदार है, गवर्नर पंजाब है सरदार सलीम हैदर। उन्होंने इनको जी लूट मार कर रहे थे वाइस चांसलरों की अपॉइंटमेंट में 25 उनको सबको उन्होंने उस पर लिखा कि ये गलत हो रहा है और वो कहते उसके हाथ साफ है, वो कहते मैं पार्टी नहीं बनता। तो आप उन तक क्यों नहीं गए? उनको
कागजात दें, आप अदालत में जाएं। चोई साहब अगर वो सुनते हैं तो मैंने पिछले दिनों में जो आपने बात बताई है ये प्रोफेसरों वाली और ये तबादलों वाली, तो उन्होंने एक्शन लिया और मुझे इस बात पे हौसला हुआ था कि मुझे अप्रोच करना चाहिए और मुझे जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ और जो लोगों के हालात हैं कोऑपरेटिव सेक्टर में और जहाँ पे लूटा जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? बाकी आप overall फैसलाबाद में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ फैसला- फैक्ट्रियाँ चल पड़ी हैं, लोगों का रोजगार खुल गया है। फैसलाबाद में तो सारी ये हालात है, मैं पहले भी अपने नाज़रीन को हम बता चुके हैं कि वहाँ पे तो फैक्ट्रियों का कब्रिस्तान बन रहा है। और जनरल बात बता रहा हूँ कि आज से एक हफ्ता पहले मैं एक शादी में वहाँ पे गया हुआ था, तो वहाँ पे आबद शेर अली साहब भी मेरे साथ बैठे हुए थे, एक तहर जुवैद साहब इनके एमपीए थे, वो बैठे हुए थे, कुछ चंद जो ताजरान थे वो भी बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि हम तो अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं कि कहीं भी वीज़ा मिल जाए तो हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो बस इनके पास दलाइल तो कुछ नहीं है चौधरी साहब, झूठ का पलंदा जितना मर्जी, जैसे कि फैसल वाडा साहब की फजल रहमान साहब बात कर रहे थे कि वो बैठ के पेशेंट गोइयाँ करते हैं, आपके प्रोग्राम में भी लोग बैठे होते हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे टीवी पे बैठ के बस एक वाह की बात चल रही है। तो माशरे में तो जो हालात है वो जितना बयान कोई करने चीज वो अच्छी कम हो है। रही है? कोई चीज साहब मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, मैं 3-4 डिवीजनों में जाता हूँ, मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लिहाजा लोग तो जिनको वीज़ा मिल जाए, अब हमारी तो बदकिस्मती देख ले कि अब तो हम दुबई भी नहीं जा सकते, दूसरे मुल्कों की तो बात कहीं भी रहेगी। इस गवर्नमेंट ने ऐसे हमारे हालात पैदा कर दिए हैं कि दुबई ने भी हमारे साहब आप भी तो वीज़े लेके लगा आए दिए हैं हैं। इस गवर्नमेंट को, बिल्कुल हम आप ही ने वोट दिया। फखर साहब मुझे पहले एक बात का जवाब दे दें कि ये आज की जो रिहाई हुई है ये डील हुई है कि नहीं हुई? अडयाला कोई जेल डील के नहीं हुई अंदर है। गाड़ी गई है, बुशरा कोई बीबी उससे वहां- क्या फर्क पड़ता है? सर अंदर फर्क के पड़ा, लिए लोग कह रहे हैं कि डील के तहत बाहर आई है, तो आप इस बारे में भी बताएं ना। जी फखर साहब। देखें, कोई डील नहीं हुई है। यहाँ पर जितने केसेस बुशरा बीबी के खिलाफ किए गए थे उनमें किसी में भी कोई भी इल्जाम जो था वो सच साबित नहीं कर सके। यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी बैठी है, जब उनसे पूछते हैं सरमायाकार उनके कि पाकिस्तान में अदालती निजाम का क्या हाल है, वो कोई कौम दी जान छुड़वानी है या तुसी बस सुके से मिल माइया? जो ये डील की बातें कर रहे हैं वो ये बताए ना कि डील कहाँ पे हुई, किससे हुई। ठीक है, फैसल वाडा जो है सब वो जानते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। तो फैसल वाडा अगर ये बात कर रहे हैं ना कि डील हुई है और जनाब ये हुआ है, तो वो फिर बताए ना, खुलकर सामने आए किसने किससे डील की है, कब की है। सर उन्होंने ये एक सब मिसाल हुजूर- दी है कि जो पिछले दिनों डी चौक में एहतजाज हुआ था तो अली अमीन गंडापुर जो है वो वहां से गायब हो गए, 24 से 48 घंटे गायब रहे हैं और केपी के असम्बली से बरामद हुए हैं, तो तब वो डील हुई है। वो तो डील नहीं हुई ना, फिर वो तो कामयाब, उनका जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कामयाब एहतजाज जो था उसकी वजह से उनको आईनी तरामीम आगे ले जाना पड़ी। उसकी वजह से उनको वो जो आईनी तरामीम में फौजी अदालतें कायम कर रहे थे और दीगर जो इन पर बुनियादी हकूक के ऊपर डाका डालने की कोशिश कर रहे थे, वो आईनी कोर्ट जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें जो थी उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। और फखर ये मुझे बताएं, मैं पहले भी आपको अर्ज किया है कि लोग ये सुनना चाहते हैं कि साड़ी इन्हां चोरां डाकुओं को किदों जान टुटेगी। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफला क्यों लुटा। तुसी हुण सानू सुक्के ते मिल माई वालियां कहानियां ना सुनाओ। CNN टर्की दे नुमाइंदा भी होए पाकिस्तान च, ब्यूरो चीफ भी होए और वो सही खबर ना दसे। जय साहब, अब बैटल ग्राउंड जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और आपको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी। और इसी में ये जो 8-9 फरवरी को जो डाका डाला था उसका भी हिसाब किताब जो है वो सामने आ रहा है और वो यकीनन इस हुकूमत के फारिग होने का वहां से फैसला जो है वो आएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने बतौर फरीक बनकर PTI के खिलाफ फैसले किए और ये जो 23 मखसूस नशिस्तें थी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन ना सिर्फ कराने में नाकाम हुआ बल्कि इसमें भी उसकी जानिबदारी जो थी वो सामने आई है। मैंने आपसे कहा था 26वीं आईनी तरामीम का मामला जो है वो शुरू होने जा रहा है 26 तारीख से, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो जाली हुकूमत है, ये जो अवामी मैंडेट पे डाका पड़ा था, बहुत जल्द इनसे जान आपकी छूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है। जी बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान साहब आपके टाइम का।
جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جانے سے پہلے سینیٹر فیصل واڈا صاحب سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پروگرام میں تشریف لا کے یہ بتائیں کہ ڈیل کس کے ساتھ ہوئی. شکریہ اور اللہ حافظ.